Have a lovely morning, children. Here is your science subject teacher. Time to study science, and we started chapter number 9 of science, which is the living organisms and their surroundings and habitats. And in this chapter, students, yesterday we were discussing the characteristics of living organisms, and in that part so far we have discussed that all the living organisms, they need food, they show growth, they do respiration, they respond towards the stimuli also. So open your science books, page number 89 of chapter number 9. Come to the activity 4 that we have to start today. यहाँ से हम start कर रहे हैं आज activity 4 से अपना explanation. In this activity 4, students, what you can see, it is mentioned that place a potted plant. पहले थोड़ा recall करते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था actual में. Do all organisms respond to stimuli? Stimuli क्या हैं? Stimuli are the, it comes here, the definition of stimuli. These are the changes in our surroundings that make us respond to them. जितने में हमारे सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं, जिनके लिए हम कुछ रिस्पॉन्स शो करते हैं, दोज चेंजेस आर एक्चुअली दी स्टिमुलाई. तो वी ऑल्सो डिस्कस सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज, लाइक सनलाइट इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलाई, एंड व्हेन वी ब्लिंक आवर आईज, that is the response towards the sunlight. Then sharp objects, they are the stimuli, and we just jerk our legs or hands at the backward direction, that is our response towards them. We discussed one example of touch me not plant, which is called as छुई मुई in Hindi. इसका scientific name है Mimosa pudica. This plant, it curls its leaves when it is being touched. जब इनकी leaves को हम touch करते हैं तो इसकी leaves curl हो जाती हैं. So the touch sensation is a kind of stimuli, and curling up of leaves, folding up of leaves is a kind of response. So in continuation of that part, response and stimuli, in today's class we are going to study in detail about the activity 4. हम activity 4 को यहाँ पे study करने वाले हैं. To conduct this activity, place a potted plant in a room a light away from a window through which sunlight enters sometime during the day. हमें एक potted plant, एक pot लेना है, एक गमला यूज़ करना है जिसके अंदर हमने plant लगा रखा है, soil is there, water is there, right? And उस potted plant को हमें एक window के पास में रखना है जहाँ पे throughout the 24 hours, not 24 hours, it is not possible, during the day time, maximum time में वहाँ पे light नहीं आनी चाहिए. At some of the time during the day वहाँ पे लाइट आती रहे, ऐसी जगह पे हमें उस पॉट को रखना है, विंडो से थोड़ा सा दूर. Continue watering the plant. आप प्लांट को वाटर देते रहें for a few days. Does the plant grow upright? Because we know, आपने जब वो प्लांट की स्ट्रक्चर वाला चैप्टर स्टडी किया था, remember? तो in that chapter we discussed that there are two parts of a plant. One is the shoot system which grows above the soil, and second one is the root system which grows below the soil. Soil से नीचे ग्रोथ करता है. तो root they always grow in the downward direction with some exceptions, and the shoot system always grow in the straight direction. वो बिल्कुल ऊपर की तरफ upright direction के अंदर मूवमेंट करता है, ग्रोथ करता है. बट इन दिस एक्टिविटी 4 वी आर आस्क्ड कि हमने विंडो के पास में जहाँ पे सनलाइट आ रही है, विंडो से एंटर कर रही है और वहाँ पे हमने प्लांट को रखा है, तो क्या प्लांट स्ट्रेट ग्रोथ करेगा? So to find out its answer, come to the next page and look at the figure 9.12. Sorry, look at the figure 9.12. In this figure 9.12, what you can see, students? You can see that in this figure 9.2, plant respond to sunlight. This sunlight, it is the kind of stimuli for the plant. और जो plant की growth है, instead of growing in the upward direction straight, this plant is growing in the direction of the sunlight, as you can see. आपको दिखाई दे रहा है. So that is just because कि shoot system, it always grows toward the sunlight. वो जनरली सनलाइट की डायरेक्शन में ग्रो करता है. तो यहाँ पे सनलाइट विंडो से एंटर हो रही है, बाकी रूम में कंप्लीटली इट इज डार्क इन
side. That's why this plant is growing in this particular direction towards the sunlight. So sunlight is a kind of stimuli, but the growth of plant towards the sunlight in the banded form, that is a kind of response. So let's do the reading part again. Do you think this may be in the response to some stimulus? हम इसका explanation समझ चुके हैं. All living things respond to changes around them. जितने भी हमारे सराउंडिंग में चेंजेस होते हैं उनकी तरफ हम कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमेशा ही शो करते हैं. नॉन लिविंग थिंग दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टुवर्ड द चेंजेस इन द सराउंडिंग. उनको अगर आप सनलाइट में भी रख रहे हैं, इफ दे आर सम शार्प ऑब्जेक्ट्स टचिंग टू देयर सरफेसेस, देन ऑल्सो दे डू नॉट रिस्पॉन्ड. उनमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है. तो दिस इज वन मोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द लिविंग बींग्स. Coming to the next characteristic feature of living beings, जिसके थ्रू हम distinguish कर पाते हैं whether the organism is living or non-living, that is living organisms and excretion. Here comes one scientific term, that is excretion. Let's understand its meaning first. What the excretion is? Whenever we eat food, जब भी हम खाना खा रहे हैं तो उस फूड का completely there is a digestion of food takes place within our body. हमारी बॉडी में उस फूड का डाइजेशन होता है, एंड थ्रू द डाइजेशन आवर बॉडी गेट्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स. जितने भी हमने फूड इनटेक किया उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे उन सबको बॉडी ने उस डाइजेशन प्रोसेस के थ्रू एब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया न्यूट्रिशन के थ्रू. एंड देन द वेस्ट मटीरियल्स, दे आर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द फूड विच रिमेन अनडाइजेस्टेड. वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है. दीज आर द वेस्ट मटीरियल्स. सो दीज वेस्ट मटीरियल दे कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड इनसाइड द बॉडी. इन वेस्ट मटीरियल्स को बॉडी के अंदर हम स्टोर करके नहीं रख सकते बिकॉज दे कैन बी पॉइजनस फॉर आवर बॉडी. सो देयर शुड be removal of these waste materials, and the process of removal of waste materials out of the body, that is called as excretion. बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से बाहर, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर रिलीज कर देना, वो एक्सक्रीशन हुआ. देखते हैं रीडिंग में क्या लिखा हुआ है. All organisms they need food. Not all the food that is eaten is completely used. जितना भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं वो completely यूज नहीं होता. For example, students, there are 7 components of food. Food के 7 components होते हैं. You must be aware about these 7 components of food. What these are? These are fat, proteins, vitamins, minerals, carbohydrate. It is carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, carbohydrates, then water, and the last one is roughage. तो रफेज क्या होता है? दिस इज द फाइब्रस कंपोनेंट ऑफ द फूड. फूड के अंदर जो फाइबर्स होते हैं इनको हम रफेज के फॉर्म में कंसिडर करते हैं. रफेज की फॉर्म में न्यूट्रिएंट है हमारे फूड के अंदर. सो दिस फैट and carbohydrates and proteins, they get completely digested within our body. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें ये फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट तो डाइजेस्ट हो जाते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड विच बूस्ट अप द इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं, बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ में हेल्प कर रहे हैं. वाटर का आई डोंट नीड टू मेंशन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. वाटर के थ्रू ही हमारी बॉडी की जितनी भी फंक्शनिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाती है. मोस्ट ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट इज द वाटर. हमारी बॉडी वेट का जो मैक्सिमम पार्ट है ऑलमोस्ट 90% दैट इज द वाटर. बट रफेज इज द कंपोनेंट ऑफ फूड विच इज नॉट डाइजेस्टेड एट ऑल. इसको हमारी बॉडी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं करती. तो ये हमारी बॉडी से क्या हो जाता है? बिल्कुल अनडाइजेस्टेड फॉर्म में बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. Coming to the reading part once again, only a part of it is utilized by the body. What happens to the rest? This has to be removed. This has to be removed from the body as waste. Our body produces some waste in other life processes also. The process of getting rid. What is the meaning of getting rid? Getting rid means the removal. बाहर निकालना किसी चीज को, किसी चीज से बच जाना. The process of getting rid of waste by organism is known as excretion. So here comes the definition of excretion. आपको ऑलरेडी समझा दिया कि excretion क्या होता है. आगे देखते हैं इसके अंदर रिटर्न पार्ट में क्या है.
डू प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट, क्या प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं? दे डू, प्लांट्स के अंदर भी एक्सक्रीशन होता है, बट दैट इज नॉट सीन इन द वे एज एनिमल्स एक्सक्रीट द वेस्ट मटीरियल्स. इन आवर बॉडी स्टूडेंट्स वी आर हैविंग द प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम. हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है टू remove the waste materials out of the body, but these plants they do not have the proper well organized excretory system as we have. तो प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल्स क्या क्या हो सकते हैं? जितने भी रेजिन्स हैं, गम है, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट के अंदर कई बार कुछ, एंड समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन कि प्लांट की जो लीव्स होती हैं आफ्टर सम टाइम दे कन्वर्ट इनटू द येलो कलर एंड दे फॉल डाउन फ्रॉम द ट्रीज. वो ट्री से अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, नीचे गिर जाती हैं. तो वो जो येलो लीव्स हैं, प्लांट का जो स्टेम है वहाँ से कुछ रेजिन स्टिकी सब्सटेंस बाहर निकलते हैं, गम बाहर निकलता है. सो व्हाट these all are the waste materials for the body of the plant. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के फॉर्म में उसको बॉडी से बाहर रिलीज नहीं करते. जो भी प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल है वो लीव्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड लीव्स दे टर्न इनटू द येलो कलर और वहाँ से गिर जाती हैं. एंड जितना भी रेजिन है, गम है, वो स्टेम से रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है. तो इन दिस वे द वेस्ट मटेरियल्स आर रिलीज आउट फ्रॉम द प्लांट बॉडी. प्लांट बॉडी से इस तरीके से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकलते हैं. Coming back to the reading part, some plants find it possible to store the waste products within their parts in a way that they do not harm the plant as a whole. वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को प्लांट के कुछ पार्ट्स के अंदर स्टोर करके रख लेते हैं एंड उससे उनकी बॉडी को कोई नुकसान भी नहीं होता. Some plants remove waste products as secretions, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, जो गम होता है, रबर जो हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट से, रेजिन्स हैं, तो दीज आर दी सिक्रीशंस. ये प्लांट सिक्रीशंस हैं, वेस्ट मटेरियल हैं प्लांट के लिए किसी भी काम के नहीं हैं, बट दे आर यूजफुल फॉर अस. सो एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं उनमें एक्सक्रीशन होगा, नॉन लिविंग बींग्स के अंदर एक्सक्रीशन कभी भी नहीं होता. सो दैट्स ऑल फॉर आवर टुडेज वीडियो. आज की वीडियो के लिए इतना ही. Time to get questions for homework. So note down the first question, that is students, question number 1. Define excretion. What the excretion is, you are supposed to give its definition. Question number 2 is, let me think, what question should I give you? It is with the help of an activity, prove plant respond to light. आप कोई एक्टिविटी के थ्रू एक्सप्लेन करना है कि प्लांट जो है वो लाइट के तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं. सो दीज आर 2 क्वेश्चंस फॉर टुडेज होमवर्क. स्टूडेंट्स, सबमिट योर वर्क ऑन टाइम. टेक केयर, डू प्रॉपर लर्निंग एंड रिविजन ऑल्सो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, टेक केयर, बाय.